Hello friends, welcome to 7-star tuition classes. Up till now, you have started the learnings for social science. This is the video lecture for 9th standard. We have started the first chapter. We have completed our 2 lectures. In that 2 lectures, up till now, you might be aware that what actually we are going to learn in this whole chapter. The chapter will suggest that what was the compulsion, why there was a compulsion to find a new sea route to India, how people from different countries tried to find out the sea route to India, and finally it was a sailor from Portuguese, Vasco da Gama, who found out the successful first sea route to India. And then slowly and gradually, after Portuguese, there came Dutch, there came people from Denmark, Holland, France, and then finally there were Britishers from England who entered India for the trade purpose. Slowly and gradually, there was, after East India Company, there was French East India Company who entered India. There was a constant collision between French East India Company and British East India Company, but finally it was British East India Company who was able to take a hold on the trade and business over India. So moving ahead, today we will learn about the Battle of Plassey. A very important answer, a very important short note in the context to the examinations. Battle of Plassey. सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल. उस समय की बात है जब वेस्ट बंगाल में सिराजुद्दौला नाम का जो किंग था, एम्परर था, वो बंगाल पे रूल कर रहा था. ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट्स इन हिज स्टेट. उसका नेचर ऐसा इम्पल्सिव था, थोड़ा एग्रेसिव था, और वो एग्रेसिव नेचर के कारण उसके बहुत सारे ओपोनेंट्स यानी कि दुश्मन खड़े हो गए थे. I'll repeat what I said. It was Sirajuddaulah who was ruling over Bengal. Due to his impulsive or say aggressive nature, he had some opponents in his state. During this period, the British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reasons without taking the permission of Nawab. अब उस दिन क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के आजू बाजू, उनका जो ट्रेड सेंटर था बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके आजू बाजू एक बड़ा फोर्ट, किला खड़ा कर दिया और रीज़न दिया कि सिक्योरिटी रीज़न के कारण हम ये फोर्ट्रेस खड़ा कर रहे हैं. और इसमें उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के रूलर थे सिराजुद्दौला, उसकी परमिशन नहीं ली. आई अगेन रिपीट कि क्या हुआ. सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल. Due to his impulsive, that is aggressive nature, he had many opponents in his state only. Now during this period, British East India Company built a fortress around the trade center in Kolkata. कोलकाता में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड सेंटर था, उसके आजू बाजू बड़ी फोर्ट्रेस वहाँ पे बना दी गई. Now it was without taking the permission of Sirajuddaulah, but Nawab Sirajuddaulah destroyed the fortress. सिराजुद्दौला की परमिशन नहीं ली गई थी. उसके कारण क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने उनको पूछे बिना वो फोर्ट्रेस गिरा दी. When this news reached Madras, a small army of the company led by Robert Clive reached the Bengal in order to help the Kolkata trade center. अब सिराजुद्दौला ने ये फोर्ट्रेस पूछे बिना गिरा दी. ये न्यूज़ चेन्नई पहुँचे, मेड्रास पहुँचे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी आर्मी कोलकाता के ट्रेड सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेड्रास आ गई अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव. अब रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के नीचे एक स्मॉल आर्मी चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई, कोलकाता का ये ट्रेड सेंटर प्रोटेक्ट करने के लिए. इन स्पाइट ऑफ द आर्मी, East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat Nawab's army.
So Robert Clive resorted a treachery. अब आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, पर उन्हें मालूम पड़ गया कि सिराजुद्दौला की आर्मी को हराना बहुत ही मुश्किल है। वॉर फील्ड में, बैटल फील्ड में सिराजुद्दौला की आर्मी को डिफीट करना इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक ट्रेचरी प्लान की। ट्रेचरी यानी कि एक तरकीब प्लान की। क्या थी वो तरकीब? में पढ़ा कि एक कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी नवाब को डिफीट करने के लिए, इन विच द नवाब्स कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद वेर कॉक्स्ड टू ज्वाइन। अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि जो कोई भी किंग होता है वो वॉर में हेवीली डिपेंडेंट होता है उनके कमांडर इन चीफ पर, सेनापति जिसे बोलते हैं। अब क्लाइव ने क्या किया कि नवाब का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर एंड सेठ अमीचंद, उनको ललचा के क्या किया, ब्रिटिश आर्मी के साथ ज्वाइन किया, मीर जाफर को पता न चले ऐसे। On the pretext that Nawab is unnecessarily harassing the people, a war was declared at the ground near village named Plassey. अब क्या किया गया कि नवाब इज हैरेसिंग पीपल, वो रीजन के साथ वॉर डिक्लेयर किया गया ब्रिटिश आर्मी और मीर जाफर के बीच में। कहाँ पे? नियर अ ग्राउंड, बैटल ग्राउंड नियर अ विलेज नेम्ड एज प्लासी। सो दिस वॉर इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासी। According to the plan, Mir Jafar lost the battle, Sirajuddaulah was defeated. Fine. मीर जाफर जैसे प्लान किया गया था बैटल फील्ड में हार गया और सिराजुद्दौला वो वॉर में भी डिफीट हो गया। ड्यू टू रॉबर्ट क्लाइव्स ट्रेचरी द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। आधे दिन में ये तरकीब के कारण, ये चाल के कारण, रॉबर्ट क्लाइव के ये चाल के कारण ये पूरा बैटल ऑफ प्लासी हाफ डे में इट वॉज एंडेड। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 Paraganas. Paraganas means that much like kilometer, that much area. फाइन। ये वॉर में जीतने के कारण ब्रिटिश आर्मी को 24 Paraganas ज़मीन दी गई। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और ये जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी ने मीर जाफर जो कमांडर इन चीफ था उनको क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बनाया गया। Thus the foundation of company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757। तो ये पहला ऐसा वॉर था जिसके कारण ब्रिटिश जो रूल है, कंपनीज रूल है, वो इंडिया पे ज़्यादा मजबूत होने लगा। सो इन 1757 द बैटल बिटवीन प्लासी वॉज द फर्स्ट वॉर इन विच और ड्यू टू विच द कंपनीज रूल बिकेम मोर स्ट्रोंगर इन इंडिया। अब ऐसे ही एक बैटल की बात करें, बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिशर्स मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल एंड अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स्ट ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। अब जैसे कि आपको पता है कि मीर जाफर जो बाद में नवाब बनाया गया वो किसके कारण बना था? ब्रिटिशर्स के कारण बना था। तो वो सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर से बहुत बड़ी वेल्थ एक्सट्रैक्ट करना चालू कर दिया। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू dethrone मीर जाफर एंड मेड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफर में से उनका जो फ़ायदा था वो ख़त्म हो गया, इसलिए वो ग्रीड में ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के ग्रीड में उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया बंगाल के नवाब पे से और मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। Mir Qasim proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus became a threat for the company। अब मीर जाफर से भी ज़्यादा एम्बिशियस, शक्तिशाली मीर कासिम प्रूव हुआ और ब्रिटिशर्स को अब डर सताना चालू हो गया कि इट इज़ अ थ्रेट फॉर ब्रिटिशर्स टू रूल ओवर बंगाल। Hence Mir Qasim was removed and Mir Jafar was again made the नवाब। फिर से ट्विस्ट आया, मीर कासिम को फिर से हटा दिया
और मीर जाफ़र को फिर से एक बार बंगाल का नवाब बना दिया गया. Mir Qasim took the refuge with the Nawab of Awadh. During this period, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. अब क्या किया, 3 राजा मिलके ब्रिटिशर्स के सामने एक कॉन्स्पिरेसी तैयार करने में लग गए, जिसमें मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड एम्परर शाह आलम, वो 3 मिले वहाँ पे. और so all 3 of them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declare a war. अब 3 मिलके वॉर करने का डिसाइड कर दिया. At Buxar, the East India Company fought against the United Army, in which the United Army lost. अब 3 जो लोग थे उन्होंने यूनाइटेडली फाइट करने का डिसाइड किया ब्रिटिश आर्मी के सामने. और 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर जो जगह थी वहाँ पे एक वॉर हुआ, और वो वॉर में यूनाइटेड आर्मी जो थी, तीनों राजा की जो आर्मी थी वो हार गई. थस द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स टू बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. वो वॉर में भी ब्रिटिश आर्मी बहुत ही अच्छी तरह से वो वॉर जीत लिया. एंड ड्यू टू दैट दे गॉट द दीवानी राइट्स. व्हाट इज दीवानी राइट्स? Diwani rights means to collect the tax, to collect the revenue in Bengal, Bihar and Orissa. So this was a historical moment where Britishers were made more and more powerful. In this lecture we studied the Battle of Buxar and Battle of Plassey. You need to write the short note, send your homeworks through your WhatsApp numbers. We will check it out. I have explained in detail what were the reasons for the war between British Army and the kings of India. Hope you are getting these presentations. The teaching method is suitable to you. We will continue this method, and after the completion of chapter 1, we will schedule a test for you all. You just need to write the short notes, and the questions we will discuss it from digest as well, slowly and gradually. Till then, have a very nice day, friends. Enjoy.